মাদ্রাসার তিনটি ছাত্র এনামুল হক, ইকরামুল হক, ওমর ফারুক। একজনের বাড়ি নদিয়ায়, একজনের বাড়ি হুগলি, একজনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ। তো এদের কাছ থেকে আমরা কথোপকথন শুনছি, দেখা যাক ওদের বিষয়বস্তুটা কি এবং ওরা কি আলোচনা করতে চাইছে। কেমন আছো? অনেকদিন পর দেখা হলো, তা খবরটা সব ভালো তো? আলাইকুম সালাম। এই খবর টবর আর ভালো বলে কি করে, এমএসসি পাস করে এদারে সেদারে ঘুরেই মরছি, এখনো একটা চাকরি জোগাতে পারলাম না। যাক সে কথা, তা তুমি কেমন আছো বন্ধু? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ শান্তিতে রেখেছেন। বাহ, বেশ ভালোই আছো তাহলে। তা সেই 8 ক্লাসে পড়তে পড়তে তুমি স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলে তাই না? হ্যাঁ বন্ধু, তারপর আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দিনী শিক্ষা অর্জন করেছি এবং বর্তমান দিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছি। এই রে, তোমার মাথাটা আবার কে খেয়েছিল তা কি জানি, শেষ পর্যন্ত এই ফকিরি বিদ্যা ভোগবাজি শিখতে গেলে। কেন বন্ধু, দিনী শিক্ষার প্রতি তোমার এত অবজ্ঞা, এত ঘৃণা কেন? কেন আবার, এই শিক্ষার কোনো মাথা মন্ড আছে নাকি? বাস্তবতাহীন যত সব আজগবি কথাবার্তা, যা জীবনটাই মাটি করে ফেললে। কোরআন হাদিসের শিক্ষাকে তুমি বাস্তবতাহীন বলছো? তা না তো আর কি, খালি বলে মরণকে স্মরণ করো, কবর, আখেরাত, জাহান্নাম, বাস এই নিয়েই তো পড়ে থাকো, যুক্তিহীন সব কথাবার্তা। বন্ধু, আমি দুঃখিত, একজন মুসলমান যে নিজেকে উচ্চ শিক্ষিত বলে দাবি করে, সে কিনা ইসলাম ও দিনী শিক্ষা সম্পর্কে এমন ধরনের জঘন্য সব উক্তি করে। আফসোস, শত আফসোস, দিক তোমার উচ্চ শিক্ষাকে। রেগে যাচ্ছ কেন বন্ধু? আমি যুক্তিবাদী, আমি তোমার কাছে যুক্তিসঙ্গত উত্তর আশা করি। রাগের আর কি, আসলে 3 পাতা বিজ্ঞান, সামান্য কিছু দর্শন আর লজিক পড়ে কতিপয় মানুষরা মনে করে পৃথিবীর বোঁটাটা হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি, একটু চাগিয়ে দেখি, যত সব বোকার দল। কি বলে বোকা? বিজ্ঞানের সাফল্যে মানুষ আজকে মহাকাশে, মঙ্গলে ও চন্দ্রে পাড়ি দিচ্ছে, আর তুমি বলছো কিনা বোকা? তাই কি হয়েছে? তোমার পেটে ভাত জুড়েছে, তুমি এমএসসি, তোমার চাকরি হয়েছে, খালি সব বড় বড় বাতেলা। মহাকাশে নয়, একটু মাটিতে পারে কে ভাবুন। তুমি বলতে চাইছো কি? একটু বলে খুলে বলো তো দেখি, তোমার কথা কেউ যুক্তি খুঁজে পাই কিনা। বিজ্ঞানে কেউ যদি অজ্ঞান হয়ে থাকে, তাকে তো বোঝানোই দায়, তবু চেষ্টা করি, হেদায়েতের মালিক আল্লাহ। বিতর্ক তো হতেই পারে, বিতর্ক তো হতেই পারে, রাগের আর কি আছে, যুক্তিতর্কে আলোচনা হলে ক্ষতি কি? ক্ষতি কিছু নেই, কেউ যদি জেগে ঘুমায়, তার ঘুম তো ভাঙানোই দায়। পবিত্র কোরআনের ভাষায় সুম্মুন বুকমুন উমিউন ফাহুম লা ইয়ারজিউন, কি যেন একটা শ্লোক শোনালে, মানে তো কিছুই বুঝলাম না। পাণ্ডিত্যের দাবিদাররা বুঝলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। পৃথিবীবাসীদের জন্য গাইড বুক হিসেবে প্রেরিত মহান স্রষ্টা, মহান আল্লাহর মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বাণী এগুলি, কোনো শ্লোক নয়। তা নয় বুঝলাম, অর্থটা কি? ওই শ্রেণীর লোক যারা কানে শোনে না, মুখে কথা নেই, চোখে দেখে না, তারা সুপথে ফিরবে না। কথাগুলির গভীর অর্থ আছে মনে হচ্ছে, একটু খুলে বলো তো দেখি। ওই জেগে ঘুমানোর মতো আর কি, শোনেও শোনে না, সত্যি জেনেও মুখে স্বীকার করে না, আল্লাহর কুদরত দেখেও দেখে না। তুমি তো শিক্ষিত, ভাষা জ্ঞানে তো আছো, বুঝে নাও। তোমার জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করছি এবং যথাযথ গন্ধ পাচ্ছি। আসলে আল কোরআন ও হাদিস ও নবী আদর্শ সম্পর্কে কেউ যখন বিশদে না জেনে আলটপকা মন্তব্য করে, তখনই কষ্টটা হয়। আমি কিন্তু আগেই বলেছি, আমি অন্ধবিশ্বাসী না, আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। তোমার চোখে ঠুলি আছে, তাই তুমি ইসলামী আদর্শ নীতিকে অন্ধবিশ্বাস বলছো। তোমার চোখের রঙিন চশমা খুলে সাদা চশমা পরাতে আমার ছাত্র আসছে। এসো তো বাবা এনামুল। আসসালামু আলাইকুম। জি হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। এসো বাবা, এই তোমার চাচাজিকে একটু বোঝাও তো।
আমি ততক্ষণে ইশাকের নামাজটা আদায় করে আসি। হ্যাঁ চাচাজি, আপনাদের দুজনের কথা আমি সব শুনেছি। আপনি তো কোরআন হাদিস জানেন না আর পড়েন উনি, তাই আপনার ধারণায় অনেক অস্বচ্ছতা। তুমি বাবু ছেলে মানুষ, তোমার হুজুর তো পালিয়ে গেলেন। সব বুঝি বাবু, সব বুঝি, সবই ভোগবাজি। কিছুই বোঝেন না আপনি। যদি বুঝতেন ওই কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো আর কথা বলতেন না, বুঝলেন? কি আমাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলছো? দেখো পুচকের কথা। দেখুন চাচাজি, আপনাকে আমি অপমান করতে চাই না। হাজার হোক আপনি আমার ওস্তাদজির বন্ধু এবং বয়সও অনেক বড়। থাক থাক, জুতো মেরে আর গরু দান করতে হবে না। কি বলতে চাইছো তাই বলো। আমাকে ক্ষমা করবেন চাচাজি। আমার পরামর্শ, আপনি কোরআন হাদিস গভীরভাবে অধ্যয়ন করুন, দেখবেন আপনার মনের সব জটলা কেটে যাবে। আপনি তো একজন শিক্ষিত মানুষ, আর শিক্ষিত মানুষেরা দ্রুত উপলব্ধি করতে পারেন। এই পরামর্শটা থেকে মহাযোগে ছাত্র আগমন ঘটানো হলো। কতবার হাসবো। বেয়াদবি মাফ করবেন, না বলে আর পারলাম না। বিজ্ঞান নিয়ে অনেক গর্ব, তাই না? মহাকাশে, মঙ্গলে ও চাঁদে পৌঁছে গেছে বিজ্ঞান, মাটিতে আর পা পড়ে না। অবশ্যই, যেটা সত্য সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। বলুন তো, এক ফোঁটা রক্ত বিজ্ঞান তৈরি করতে পেরেছে কিনা? কোন ফ্যাক্টরিতে মধু তৈরি হয়েছে কিনা? কালো চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞান কি করছে? বয়স বেরিয়ে যাচ্ছে, টাইট চামড়া ঢিলা হয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত মানুষ তো মরেই যাচ্ছে। তাহলে বিজ্ঞান উন্নতিটা কি করলো? সেই যখন মরণী বিধান, তাহলে কেমনে গায় বিজ্ঞানের জয়গান? বাহ, বেশ যুক্তির কথা বললে। চমৎকার তোমার যুক্তি। দেখুন, মানুষের উপকারার্থে বিজ্ঞানের নানাবিধ আবিষ্কারকে আমরা সম্মান জানাই। সবটাই আল্লাহর নিয়ামত। পৃথিবীর সমস্ত উপকরণ আল্লাহ তাআলা মানুষের উপকারার্থে দিয়ে রেখেছেন। তাহলে তুমি স্বীকার করছো যে বিজ্ঞান আবিষ্কারের একটা গুরুত্ব আছে, এই কথা তুমি স্বীকার করছো, তাই না? স্বীকার অস্বীকারের প্রশ্নই আসে না। আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। আচ্ছা, গাছের মাথায় ডাব, আর ডাবের মধ্যে পানি, খেজুর গাছের মাথায় মিষ্টি রস, একটু ভাবুন না, এগুলি কম আশ্চর্য? তোমার যুক্তির কাছে আমি ক্রমশ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। কোনো কিন্তু নেই। প্রকৃতিগত প্রাকৃতিক বলে বিজ্ঞান যে বিষয়গুলি এড়িয়ে যায়, আপনি বিজ্ঞানকে প্রশ্ন করুন ওই প্রকৃতিটা কি, দেখবেন আপনার মনের ধোঁয়াশা ভাবটা অনেকটাই কেটে যাবে। তা বাপু, অনেক দীর্ঘ আলোচনা হলো আমাদের মাঝে। জীবনকে নতুন করে ভাববার একটা রসদ পেলাম। তোমরা বাপু দীর্ঘজীবী হও এবং এমনিভাবে মানুষকে সুপথ দেখাও। তাহলে চাচাজি, মাঝে মাঝে আপনার বন্ধু এবং আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, দেখবেন আপনার মনের ধোঁয়াশা, অন্ধকারটা দূর হয়ে যাবে। আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। তার বলতে এবার থেকে আমি রোজ মাদ্রাসায় ফারুকে আসবো এবং সকলের সঙ্গে আলোচনা করব। আল্লাহ সকলেরই মঙ্গল কামনা করুন। যাক, চলো এবার আসা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। माशाल्लाह, हमरा और जमीयत उलमा, दिल्ली जमीयत उलमा, स्टेट जमीयत उलमा के सेक्रेटरी जनाब मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब दामद बरकातहुम, जो हमारे यहाँ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं और तशरीफ़ लाए हैं, उनके साथ में हमारे हज़रत मौलाना गियासुद्दीन साहब दामद बरकातहुम तशरीफ़ लाए हैं। हमारे जनाब हाफिज़ मिसबाहुद्दीन साहब दामद बरकातहुम। बड़ी मोहब्बत और प्यार की बात है जो उनको यहाँ पे खींच के लाया है। बेशक तो इनामुल, तुम चले एसो, तुम्हार गजलटा शोना होबे, वो करेंगे इंशाअल्लाह। तो वक्त पर आ जाएंगे। और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, ओ बाग की बहार
मुझको आज़ादिया कहाँ अब अपने घोंसले की आज़ादिया कहाँ अब अपने घोंसले की अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना ओ बाग की बहारें ओ सबका चहचहाना आता है याद मुझको लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना ओ बाग की बहारें ओ सबका चहचहाना आता है याद मुझको ओ प्यारी प्यारी सूरत ओ कहानी सी मूरत ओ प्यारी प्यारी सूरत ओ कहानी सी मूरत आबाद जिस कदम से था आबाद जिस कदम से था मेरा शियाना आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना ओ बाग की बहारें ओ सबका चहचहाना आता है याद मुझको आते नहीं सदाए उसकी मरे नफ्स में आते नहीं सदाए उसकी मरे नफ्स में होती मेरी रहाई ऐ काश मेरे बस में आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना ओ बाग की बहारें ओ सबका चहचहाना आता है याद मुझको। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम उलमा इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन, कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे आज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक ताला का बड़ा इनाम और फजल है, बड़ा एहसान है
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، کسی کا کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک ہی غرض ہے، دین کی نسبت ہے وہ، اور قرآن کی عظمت پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ دھوپ گرمی کی شدت بھی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مولانا شاکر صاحب کی محبت سے اور یہاں کے تمام اساتذہ کی محبت سے اتنے دور دراز سے سفر کر کے آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں، صرف قرآن کی محبت کے خاطر۔ اور قرآن ایک ایسی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ وہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے سینے کے اندر جو حفاظ کرام جو حافظ بنے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک ان کو سینے میں دیا، اس کے مرتبے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طریقے سے رکھا ہے، یہ جنت کے بلندیوں پر چڑھتا جا اور پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس کے ماں باپ کو وہ تاج وہ عظمت عطا فرمائیں گے کل قیامت کے دن۔ آج ہمیں اس کی نفع نظر نہیں آ رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کا نفع کو پتہ چلے گا ہمیں، تو میرے بھائی میرے عزیز دوستو بڑا افسوس ہوگا اس وقت۔ ان حضرات کی بڑی قربانی ہے جو دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو پہل تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کیا تھا، جس کو دور دراز تک آواز بھی پہنچ رہی ہے۔ آج دنیا کے ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے۔ آج اگر یہی چیز کوئی اور پروگرام ہوتا جو جگہ بھی نہیں بچتی بیٹھنے کے لیے لوگوں کو، لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی تب ہمیں افسوس ہوگا۔ اور ہم نے اپنے بچوں کو دیندار بنائے، مدارس اور مکاتب قائم کرنے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو ڈاکٹر نہ بنائیں یا وکیل نہ بنائیں یا جج نہ بنائیں یا انجینئر نہ بنائیں، بلکہ ہمارا بچہ دیندار بنے، ہمارا بچہ وکیل بنے تو دیندار بنے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے تو دیندار بنے، ہمارا بچہ انجینئر بنے تو دیندار بنے، وکیل بھی بنے تو دیندار بنے، پولیس بھی بنے تو دیندار بنے۔ آج اگر یہ مدارس نہ ہوتے، آج یہ مکاتب نہ ہوتا، تو میرے عزیز دوستو آج یہ ہمارے بچے کہاں پہنچتے، کہاں ان بچوں کا وقت لگتا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج ملک کے اندر حالات بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی کیسی اسکیمیں چل رہی ہیں۔ بس دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو نیست نبود پر اور حق کا بول بالا عطا فرمائے۔ آج ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں، آج اسکولوں کے اندر 2 سال کے بچوں کے اسکول کے اندر داخلہ ہوتا ہے، اور بچوں کو کس طریقے سے اس کو ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، اس کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آج اگر ان مدارسوں میں نہ داخل کرے تو یہ بچہ دیندار کو دور کی بات ہے، یہ دین سے بہت دور چلا جائے گا۔ پھر یہی بچہ نہ ماں باپ کی عظمت کو سمجھے گا، نہ ماں باپ کی خدمت کو کرے گا، نہ قوم و ملت کے کام کو انجام دے گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اور طبیعت کی ناساز کی وجہ سے میں مختصری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ اور جس سے جتنا بھی ہو سکے ان مدارسوں کو اپنی جان اپنے مال سے تعاون بھی کریں۔ ان مدارسوں کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے ہمارے تعاون سے یہ مدارسیں چلتے ہیں۔
मेरे अजीज दोस्तों, इसका भरपूर ध्यान रखें। जब भी दीन का तकाजा कोई हमारे सामने आए तो उसके लिए लब्बैक कहें, फौरन उसके लिए खड़े हो जाए। बहुत से जगह शहरों के अंदर तो मदारिसे के अंदर हर ज़रूरतें पूरी हो जाती है बशासत से, लेकिन गांव देहातों के अंदर बड़ी मुश्किल से ज़रूरतें पूरी होती हैं। क्यों हम लोगों ने यहाँ वक्त गुजारा आके देखा कि किस तरीके से यहाँ के मदारिसीन और यहाँ के तलबा कितनी परेशानियों के साथ दीन को हासिल कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इनकी भी और उलमा की भी अल्लाह तबारक तआला हमें कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बात पूरी करता हूँ। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलामीन। সংবর্ধনা মানপত্র আর কি প্রদান করা হচ্ছে। সময় সংক্ষিপ্ত, আরবি ভাষায় লেখা সবাই বুঝবো না, যাকে দেওয়া হচ্ছে তিনি বুঝে নেবেন, সুতরাং আর পড়া হচ্ছে না। তাকে মানপত্র দিয়ে সম্মান জানাচ্ছে আমাদের মাদ্রাসার সেক্রেটারি সম্পাদক জনাব মাওলানা মুফতি আসাদুজ্জামান সাহেব কাসেমি, তিনি মানপত্র দিয়ে সম্মাননা জানাচ্ছেন। সেবাসনামা দেকার এটা একটু নিয়ে নেওয়া হবে। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। काबिल एहतराम हमारे उलमा इकराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों और साथियों, ये आज का हसीन मजमा और ये रूहानी इज्तिमा, इजलास, जलसा मदरसा फारूकिया के सहन में मुनक़िद हुआ है, काबिल तारीफ़ है, काबिल मुबारकबाद है। और हम सब की इसमें खुशनसीबी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सब हज़रात के दरमियान उलमाए किराम की मौजूदगी में आने का, बैठने का, कहने सुनने का ये नूरानी मौका अता फरमाया है। काबिल क़द्र शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। बस चंद गुजारिशात पर जो कि हज़रत वाला ने ये चाहा है कि एक निस्बत की बुनियाद पर इजहार ख्याल करें। तकरीर क्या, असल में सोचना ये है, गौर ये करना है कि जिस ज़मीन पर या जिस मुल्क में, जिस देश में हम और आप रहते हैं, यहाँ से हमारी क्या निस्बत है। हमारे साथ तशरीफ़ लाए हाफिज़ मुस्बाहुद्दीन साहब, मौलाना बयाज साहब, मौलाना यूसुफ कासमी साहब और दीगर हज़रात, कि सोचने वाली बात यह है कि जिस मुल्क में, जिस देश में हम और आप रहते हैं, इस मुल्क, इस ज़मीन और इस वतन से हमारी और आपकी क्या निस्बत है। दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े हिस्से ऐसे पड़े हुए हैं कि जहाँ अल्लाह की मखलूक़ात रहती है, हर तरह की मखलूक वहाँ आबाद है, लेकिन हमें इस बात पर फ़ख्र है और हर मुसलमान को है और होना भी चाहिए। हर मुसलमान को इस बात पर फ़ख्र है कि अल्लाह सारी कायनात का खालिक, मालिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को हमारे और आपकी इस वतन में उतारा है कि तमाम पैगम्बरों में, नबियों में पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भारत और श्रीलंका के बीच में सरिंदीद की उस पहाड़ी पर, जिसे आज भी मुअर्रिख़ आदम सेतु के नाम से याद रखते हैं कि वो आदम सेतु मौजूद है, वो निशानी, वो पहाड़ी मौजूद है कि जहां अल्लाह ने न अफ्रीका में उतारा, न जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, न किसी और देश में उतारा, बल्कि हमें इस बात पर फख्र है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, पहले पैगंबर को
भारत में उतारा, सरंदीप की पहाड़ी में उतारा। पहले बाप बानिए नस्ले इंसानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भारत में उतारा, और फिर भारत के ऐसे ऐसे शहर, यूपी का इलाका के मौर्रिख ने लिखा है, यूपी के कई इलाके ऐसे मौजूद हैं कि जहां नूह अलैहिस्सलाम की आमद और शीस अलैहिस्सलाम की आमद, जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनकी निशानियां और उनकी अलामतें पाई जाती हैं। इसी तरह पंजाब का इलाका, भारत का एक स्टेट राज्य पंजाब, पंजाब के अंदर एक जगह है बरास। हमारे अकाबिर उलमाए किराम, औलियाए किराम, औलिया अल्लाह के वली इस बात पर मुत्तफक हैं कि पंजाब में बरास वो जगह है जहां 12 पैगंबरों और नबियों की कब्रें पाई जाती हैं। तो हमें इस बात पर गर्व है, फख्र है, और होना भी चाहिए कि अल्लाह ने अपने नबी और पैगंबर भारत में भेजे। ये तो तारीखी हवाले से बात हुई, ये जो बात हुई है तारीखी हवाले से बात हुई है, लेकिन इरशाद रब्बानी, अल्लाह के इरशाद के हवाले से अगर बात की जाए तो लिकुल्ली कौमिन हाद, कि हमने हर कौम के लिए अपना पैगंबर, अपना नुमाइंदा भेजा। तो जब हर कौम के लिए इलाके और शहरों में अलग अलग तरीके से हमने अपने नबी और पैगंबर भेजे हैं, तो यहाँ एक तरफ कुरान की आयत से, फिर तारीखी हवाले से ये बात साबित होती है कि हमारे इस भारत के अंदर बेशुमार अल्लाह के नबी और पैगंबर तशरीफ लाए। बहुत सारे ऐसे इलाके। फिर और आगे आइए, तमाम नबियों और पैगंबरों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार यूँ फरमाया कि मुझे हिंद से ईमान की खुशबू आती है। हदीस पाक के अंदर, बाराफ्ता हदीस पाक के अंदर हिंद के लफ्ज का तज़किरा मौजूद है, और इमाम बुखारी ने तो एक बाब ही इसी उन्वान पर कायम किया, हिंद के नाम पर। तो हिंद के हवाले से, भारत के नाम से अल्लाह के नबी ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मुझे हिंद से ईमान की खुशबू आती है, मुझे हिंद से हिदायत की हवा चलती हुई नजर आती है। तो यकीन जानिए कि वो नबियों का सिलसिला, वो नबियों की आमद, वो नबियों की आमद और तमाम नबियों के सैयदुल अंबिया का एक इरशाद कि मुझे हिंद से ईमान की हिदायत की खुशबू आती है, तो बंगाल से भी खुशबू आ रही है, 24 परगना इस इलाके से भी ईमान की खुशबू जा रही है। सुभान अल्लाह। कि हिंद के किसी इलाके को खास नहीं किया कि सिर्फ दिल्ली से खुशबू पहुंच रही है या यूपी या कोई और इलाका है, बल्कि आपने फरमाया कि मुझे हिंद से ईमान की खुशबू आती है। तो कारी शाकिर साहब की ये मेहनत, ये वो जमीन है कि न जाने यहाँ कब से खेत होंगे, और वह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अल्लाह को मंजूर ये था कि खालिक कायनात का भेजा, उतारा, नाज़िल किया हुआ कुरान की सदा, कुरान की आवाज इस खेत पर इंशाअल्लाह गूंजेगी। कब अल्लाह का फैसला हुआ होगा। और आगे आइए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, नाती कहते हैं, नवासे। इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद कर दिए जाते हैं, शहीद हो गए। आपके सर मुबारक को यजीद ने अपने दरबार में मंगाया। यजीद ने इमाम हुसैन के सर को अपने सामने रखा, और यजीद के हाथ में एक छड़ी थी, एक लकड़ी थी उसके हाथ में। उसने अपनी छड़ी से इमाम हुसैन के होठों को छेड़ने की कोशिश की।
उस होटो को हिलाते रहते। तो एक सहाबी वहाँ बैठे हुए थे, हजरत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और खड़े हो गए, गुस्से की हालत में खड़े हुए और यूँ कहा कि यजीद, ए यजीद, अपने हाथ को पीछे रख, अपने हाथ को पीछे रख, कि तू इमाम हुसैन के सर को और आपके ये होठों को छेड़ रहा है, अपने हाथों को पीछे रख। मुझे वो मंजर याद आ रहा है, मुझे वो नक्शा याद आ रहा है, मुझे वो मंजर याद आ रहा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर इमाम हुसैन सवारी फरमाया करते थे। तो इमाम हुसैन ने ये फरमाया, मैदान करबला में शहीद होने से पहले यजीद का नुमाइंदा मौजूद था, चाहे वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हो। आपने ये कहा था कि भाई मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं जंग नहीं चाहता हूँ, मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरा दिल ये चाहता है कि मुझे आप इजाजत दीजिए और मैं हिंद की तरफ रवाना हो जाता हूँ। यानी उस वक्त भी मैदान करबला में ये मौर्रिख ने ये वाक़या इस अंदाज में लिखा है कि मुझे आप इजाजत दें, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं जंग नहीं चाहता, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। तो मेरी तमन्ना यह है कि मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं हिंद चला जाऊँ। तो वहाँ भी आपने हिंद का जिक्र फरमाया, वहाँ आपने हिंद आने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई, वहाँ आपने हिंद के सफर का इरादा फरमाया। तो जब इमाम हुसैन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू और अपने कलिमात मुक़द्दसा में हिंद का जिक्र फरमा रहे हों, तो हमें और आपको कितना फख्र होना चाहिए अपने मुल्क पर। और आगे आइए, मैं ज़रूरी समझता हूँ आज के मौजूदा हालात के हिसाब से कि हमारा ताल्लुक इस ज़मीन से क्या है, यहाँ की मिट्टी से हमारा ताल्लुक क्या है। जो लोग मुसलमानों को चैलेंज करते हैं और जो लोग मुसलमानों को ये कहते हैं कि ये बाहर के आए हुए लोग हैं, ये वो मुसलमान हैं, चाहे वो आसाम के रहने वाले मुसलमान हो, चाहे वो बंगाल के रहने वाले मुसलमान हो, चाहे वो राजस्थान के रहने वाले मुसलमान हो, किसी भी शहर के और किसी भी स्टेट के मुसलमान हो, वो इसी ज़मीन के, इसी मुल्क के और इसी मिट्टी के रहने वाले मुसलमान हैं, यही पैदा हुए हैं और यही पैदा होकर के उन्हें इस मिट्टी से विदाई लेनी है और रुखसत हो जाना है। तो और आगे आइए, एक मशहूर सहाबी है हजरत तमीम दारी, तो सहाबी का नाम सुना होगा, हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मशहूर सहाबी है। वाक़या बहुत लंबा है, मैं इशारे में बोल रहा हूँ, एक वाक़ये के पीछे बड़ी तफसील है, लेकिन एक सहाबी हजरत तमीम दारी, ये दारी ये आपका लक़ब है कि भारत के जुनूबी हिस्से में द्राविड़ नस्ल यानी साउथ इंडिया के अंदर एक बरादरी है, उस बरादरी का, उस जात का नाम ये है द्रविड़। तो द्रविड़ को दारी कहते थे अरबी में। और हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु इस मुल्क के रहने वाले, साउथ इंडिया के रहने वाले सहाबी थे। और उस जमाने में जब अरब और हिंद का रिश्ता और ताल्लुक कारोबार की बुनियाद पर, वो पानी के जहाज के जरिए या कश्ती या नाव के जरिए वो लोग यहाँ सफर करते थे, वो तिजारत पे कारोबार करते थे। उसी ज़माने में हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु का सफ़र हुआ, आपने ईमान कबूल किया, आपके परिवार मुसलमान हुए। तो अल्लाह के नबी ने एक बार ये फरमाया कि ये देखो, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि ये देखो ये तमीम दारी है, इनके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया समंदर में। अल्लाह के नबी फरमा रहे, बुखारी शरीफ का वाक़या, पूरा वाक़या देखिए क्या ये फरमा रहे हैं कि ये देखो ये बैठे हैं तमीम दारी मस्जिद नबवी के अंदर, मदीने पाक के अंदर, मेहराब के ऊपर, और आप तमाम सहाबा के किराम के सामने ये फरमा रहे हैं ये तमीम दारी है, ये इनके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया है समंदर के इलाके के अंदर। क्या आप जा रहे थे पानी पे नाव पे, तो आपकी नाव समंदरी हवा और समंदरी तूफान और समंदरी लहर की वजह से आपकी नाव किसी पहाड़ी या किसी टापू से जा लगी, वहाँ पहुँच गई। तो जब वहाँ उतरे तो वहाँ आपको एक ऐसा, यूँ कहा जाए, एक ऐसी शक्ल का इंसान मिला या कोई ऐसी चीज़ थी, अल्लाह की मखलूक थी कि उसने आपको पकड़ा और वो अंदर लेके चला गया। जब अंदर पहुंचते हैं तो वहां आपने देखा कि जंजीर में जकड़ा हुआ एक शख्स अंदर बैठा है और यूं कहा कि मैं दज्जाल हूं। हजरत तमीम दारी से कहा कि मैं दज्जाल हूं, जंजीर में जकड़ा हुआ था कि मैं दज्जाल हूं और
اس نے سوال کیا حضرت تمیم داری سے، کیا وہ آخری پیغمبر آ گئے؟ سوال دیکھیے حدیث کے حوالے سے، کیا وہ آخری پیغمبر آ گئے؟ وہ آخری رسول جو آنے والے تھے وہ آ گئے؟ کہ ہاں وہ آ گئے۔ اچھا میں دجال ہوں، اور جب مجھے غصہ دلایا جائے گا، جب مجھے غصہ آئے گا تو غصے کی حالت میں، اور جب کوئی مجھے غصہ دلائے گا تو غصے کی حالت میں پھر میں دنیا کے سامنے آ جاؤں۔ بس یہ دیکھ بات سننی تھی۔ حضرت تمیم داری وہاں سے واپس ہوئے، اور جب طوفان تھما، وہ لہر کم ہوئی، پھر آپ ناؤ پہ سوار ہوئے اور آپ مدینہ پاک پہنچے، اور مدینہ پاک پہنچنے کے بعد پھر آپ نے اللہ کے رسول سے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضرت تمیم داری یہ صحابی جو ہند کے رہنے والے صحابی ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے ملک کے بھی رہنے والے صحابی تھے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی سے یہ واقعہ مکمل بیان کیا؟ یہ مکمل واقعہ آپ نے اللہ کے نبی سے بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی نے یہ پورا واقعہ اپنی زبان مبارک سے مسجد نبوی کے اندر اور محراب پہ صحابہ کرام کے سامنے اپنی زبان سے نقل فرمایا۔ تو کتنی بڑی اہمیت دی آپ نے، تو صحابی کے واقعے کو آپ نے کتنی اہمیت دی۔ یہ ایک نسبت حاصل ہے ہمارے اس ملک سے۔ ہمارے گجرات کے مہمان بھی ہوں گے، ان کو معلوم ہے کہ گجرات میں ایک ضلع ہے بھاؤ نگر، اور کئی ایسے علاقے ہیں جو سمندری ساحلی علاقے موجود ہیں، جام نگر، یہ کئی اور علاقے شہر ہیں کہ جہاں صحابہ کرام کی قبریں پائی جاتی ہیں۔ گجرات اس لیے کہ گجرات کا سفر کراچی اور ایک سمندری راستے سے ایک ایسا سفر جاری تھا گجرات سے، تو صحابہ کرام کی آمد و رفت موجود تھی، اور صحابہ کرام کی قبریں پائی جاتی ہیں گجرات کے اندر۔ تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے صحابہ جو مخلوقات کے اندر پوری امت میں سب سے افضل صحابہ کرام کی قبریں ہمارے ملک ہند میں پائی جاتی ہیں، بھارت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور آگے آئیے، اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، دہلی خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت ماہین کے اندر، بمبئی کے اندر، یو پی کے مختلف علاقوں میں، کلیر، روڑکی، اتراکھنڈ میں حضرت علامہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر، اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی، کوئی خطہ ہمارے ملک کے اندر وہ نہیں ہے کہ جہاں ان اولیاء کرام کی اور ولیوں کی قبریں یا ان کی نشانیاں نہ پائی جاتی ہیں۔ کون کا داخلہ ہے؟ تو ایک طرف نبی، پھر صحابی، پھر ولی، اور تبھی یوں کہا کہ کہیں کہیں اب بھی نشان باقی ہے، کہیں کہیں اب بھی نشان باقی ہے۔ کتاب ختم ہوئی، داستان باقی۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ داستان سمیٹے ہوئے ہیں۔ ذرا اپنی آنکھیں کھولیے، ذرا اپنے دل و دماغ کو ذرا کھولیے، ذرا کتابوں کے ورق اور پنے پلٹ کر دیکھیے کہ پورے ملک میں جگہ جگہ ہماری نشانیاں پائی جائیں۔ آج لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، یہ پورا خطہ، یہ پوری دنیا، یہ پورا ملک، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں روحانی، ایمانی، دینی، اللہ کی طرف سے بطور نشانی وہاں جو پیغامات ہیں اللہ کی طرف سے وہ نظر نہ آئے، کوئی ایسی جگہ نہیں۔ اس لیے ایک بات ہم اور کہتے ہیں، چاہے وہ بنگال کے علاقے میں اگرچہ برادری کا رواج کم ہے، ذات برادری یہاں نہیں ہے، لیکن بہار، یو پی، ہریانہ اور کچھ علاقے اور ہیں کہ جہاں ذات برادری کا بہت بڑا دخل ہے۔ بنگال میں خیر نہیں ہے، جیسے یو پی کے علاقے میں اور دہلی میں گجر ایک ذات برادری ہے، جاٹ
एक ज़ात बरादरी है। तो जाट हिंदू भी हैं और जाट मुसलमान भी हैं, गुज्जर हिंदू भी हैं और गुज्जर मुसलमान भी हैं, चौहान हिंदू भी हैं और चौहान मुसलमान भी हैं। इसी तरह राजपूत एक बरादरी है, वो हिंदू भी है और मुसलमान भी है। उधर उस इलाके के अंदर बरादरीवाद कि ये जात ये बरादरी। तो हम ये कहते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि ये जो 4-5 ये स्टेट है कि अगर यहाँ सारे इलाके अगर जाट के इलाके हैं तो उन इलाकों में जाट मुसलमान भी हैं, बेशुमार बस्तियां हैं, इलाके हैं जाट मुस्लिम जाट के, फिर बेशुमार बस्तियां हैं गुज्जर मुसलमानों की, बेशुमार बस्तियां हैं मुसलमान राजपूतों के, और बड़े बड़े इदारे और मदरसे हैं उन लोगों के, तरह तरह के उनके दरमियान बड़ी बड़ी मस्जिदें आबाद हैं। तो मुझे ये बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए कि ये मुसलमान कोई बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, ये इसी जमीन के रहने वाले मुसलमान हैं, ये गुज्जर यहाँ के मुसलमान हैं, ये जाट यहाँ के मुसलमान हैं, ये चौहान यहाँ के मुसलमान हैं, ये राजपूत यहाँ के मुसलमान हैं, ये जितनी बरादरियां पाई जाती है सब यहीं के रहने वाले हैं, इस जमीन के रहने वाले हैं। यहाँ इनकी जायदाद है, यहाँ इनकी संपत्ति है, यहाँ इनके मदरसे इदारे हैं, यहाँ इनके मस्जिदें हैं, यहाँ इनकी निशानियां हैं, यहाँ इनके आबा व अजदाद और अकाबिर औलिया किराम की अलामतें पाई जाती है। ये मुल्क इनका है, ये शहर इनका है, ये जगह इनकी है, ये खेत इनके हैं, ये बाग इनके हैं। वो कौन शख्स है जो चैलेंज करने वाली बात करता है? वो खामोश हो जाता है। इसलिए हमें इस बात पर फख्र है कि मुसलमान इस मुल्क के रहने वाला है। और एक बात मैं और तारीख के हवाले से बात को, हमारे दोस्त बैठे हैं, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए? भारत के अंदर। गौतम बुद्ध पैदा हुए भारत यूपी में, और रहे कहाँ? बिहार में। और मानने वाले कहाँ है? जरा तवज्जो देना कि पैदा कहाँ हुए? यूपी में, और रहे कहाँ? बिहार में। और मानने वाले कहाँ हैं? थाईलैंड में, नेपाल में, चीन में, इंडोनेशिया में, ताइवान में, तिब्बत में, मणिपुर, और जो बहुत सारे इलाके जो भारत से बाहर के इलाके हैं कि वहां उनके मानने वाले। और जब पैदा वो भारत के अंदर हुए तो पूरे भारत के लोग उनके मानने वाले होते। भारत का कोई शहर ऐसा नहीं बसता, कोई ऐसा गांव नहीं बसता, कोई ऐसी बस्ती नहीं बसती कि वो गौतम बुद्ध यहाँ भारत के अंदर पैदा हुए और मानने वाले सब भारत में होते कि नहीं, कि पैदा अगर से वो भारत के अंदर हुए हैं, पैदाइश उनकी भारत के अंदर है, लेकिन मानने वाले बाहर, भारत से बाहर लोग हैं। तो मैं यहाँ एक बात ये कहता हूँ कि तमाम नबियों और पैगम्बरों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा फरमाया। मक्के में भी आप रहे, मदीने पाक में आप रहे, और आपके मानने वाले कहाँ? हाफिज साहब, मानने वाले आपके कहाँ हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, ब्रुनाई। और इधर आइए तो ये तमाम मशरिक के जितने भी इलाके हैं, और ये जितने अफ्रीका में जितने हैं, तंजानिया, कीनिया, हबशा, सूडान, अल्जीरिया, नाइजीरिया, और जितने भी ये देश हैं, अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, कनाडा, कोई ऐसा खित्ता नहीं है कि जहां अल्लाह के नबी के मानने वाले ना हो। हमें इस बात पर फख्र है कि अल्लाह के नबी मक्के में पैदा हुए हैं, हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह मदीने में रहे हैं, और मानने वाले बंगाल के अंदर है, मानने वाले इंडिया के अंदर है, मानने वाले बांग्लादेश के अंदर है, मानने वाले श्रीलंका के अंदर है, मानने वाले यूरोप के अंदर है। तो नबी वहां है, पैदा हुए, रसूल वहां आए, और मानने वाले सारी दुनिया में है। तो आप इस बात को चैलेंज करें कि मानने वाला कहीं भी हो सकता, ईमान लाने वाला तो अल्लाह की तौफीक है, ये खुदावंद कुदूस की नेमत है कि अल्लाह ने इंसानों को, अल्लाह ने अपने बंदों को हिदायत से, नूर से, रोशनी से, मोहब्बत से, तौफीक से, नेमत से, इनाम से उनको नवाजा है। बहरहाल, और आगे आइए, ये सब निस्बतें हैं हमारे इस मुल्क की। इसी तरह हमें, चूंकि ये कुरान की निस्बत पर
اور یہ اجلاس ماشاءاللہ ہمارے شاکر صاحب نے اور ذاکر بھائی مفتی صاحب اور ہمارے جو شاکر صاحب کے بہنوئی ہیں اور سبھی جتنے بھی منتظمین حضرات ہیں اساتذہ یہاں مدرسے کے، کہ میں ایک سوال یہ کرتا ہوں، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے مسلمان جو قرآن والے مسلمان ہیں، قرآن مجید والے مسلمان، ان کے آنے سے 4000 سال پہلے یہودی آئے، 4000 سال پہلے دنیا میں یہودی آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یہ قرآنی مسلمانوں سے 550 سال پہلے عیسائی آئے، 4000 سال پہلے یہودی ہے، 550 سال پہلے عیسائی ہے۔ اللہ کے نبی ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، تو میں ایک سوال کرتا ہوں، میں نے دہلی کے اندر کافی ہاؤس میں بڑے بڑے ودوان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، منترالی اور منسٹر کے لوگ وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے، اور کئی مذہب کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ مجھے اس کا جواب دیجئے، کیا آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، پہاڑ وہی ہے، سمندر وہی ہے، یہ چرند اور پرند، یہ جانور، یہ ہوا، پوری کائنات وہی ہے، یہ بادل وہی ہے، بارش وہی، سورج کی روشنی وہی، زمین وہی، اندھیرا وہی، رات وہی، تو پھر مجھے اس کا جواب دیجئے، دنیا میں سائنس کو ترقی کیوں نہیں ملی؟ مسلمانوں سے پہلے 4000 سال پہلے یہودی ہیں، پر دنیا میں سائنس کو ترقی کیوں نہیں ملی؟ وہی پہاڑ ہے، وہی زمین ہے، وہی دریا ہے، وہی ہوا ہے، وہی کائنات ہے، وہی سب کچھ موجود ہے، اور 550 سال پہلے عیسائی آئے، ان کے بعد انجیل تھی، ان سے پہلے توریت تھی، زبور کتاب تھی، لیکن دنیا میں سائنس کو ترقی نہیں ملی، کیوں نہیں ملی؟ اب اس کا جواب موجود ہے۔ جب قرآن آیا تو قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ دخان۔ توجہ دیجیے، یہ تمام بہت تجربات کی بات ہے کہ قرآن مجید جب آیا اور قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ دخان۔ دخان کا معنی کیا ہے امیر صاحب بتائیے؟ دخان کے معنی دھواں، گیس۔ سوچنے والی بات ہے، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ قرآن آتا ہے اور قرآن اپنی سورت کا نام رکھتا ہے گیس اور دھواں۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوتا ہے، سورت نازل ہوتی ہے، اللہ کی آیتیں دنیا میں نازل ہوتی ہے، اور اس وقت یہ نام رکھا جاتا ہے سورۃ دخان۔ یہ گیس والی سورت ہے، یہ دھویں والی سورت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی۔ پھر ایک سورت کا نام ہے سورہ حدید۔ یہ سورہ حدید، حدید کے معنی لوہا، فولاد کے، یہ اس قرآن میں یہ سورت ہے، یہ لوہے والی سورت ہے، یہ فولاد والی سورت ہے، یہ گرہ، یہ منگل گرہ، یہ نجم، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ شمس، اور سورہ نمل یہ چیٹی والی سورت ہے، اور سورہ دخان یہ دھوئے والی سورت ہے۔ ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن اس وقت اپنی صورتوں کا نام رکھتا ہے، کائنات کے نام پر، ہوا اور دھوئے کے نام پر، چیٹی کے نام پر، سورج اور یہ ستاروں کے نام پر، تو اس میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی جواب کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ لوگ چاند کو دیوتا کہتے ہیں، وہ چاند کو خدا کہتے ہیں، وہ سورج کو خدا کہتے ہیں، تو قرآن نے آ کے بتایا کہ نہیں، انما الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ۔ یہ بتا دیا کہ دنیا کی ساری چیزیں، ساری پوری کائنات تمہاری خدمت کے لیے ہے، اور تم کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ زمین کے اندر ہم نے خزانے چھپا رکھے، زمین کے اندر خزانے چھپا رکھے ہیں، اس کو نکال دو۔ تو پہلے والوں نے کیوں نہیں نکالا؟ انہوں نے ہوا پر ریسرچ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بادلوں پر ریسرچ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کائنات پر ریسرچ کیوں نہیں کیا؟ لیکن جب قرآن آتا ہے تو پھر مراکش کے اندر
यूरोप के अंदर ईसाइयों की मजलिसों में, यहूदियों की मजलिसों में बादाफ्ता कुरान पर रिसर्च होता है, तो लोग कुरान के साथ चलते हैं। अब आखिरी बात मैं और कहूँगा, इशारा कर दीजिएगा। अब आखिरी बात मैं और कहूँगा, अपनी बात मुकम्मल करने के लिए कुरान की निस्बत पे, कुरान के हवाले से यहाँ आज हाफिज कुरान हुए हैं। पहली बार हजरत कारी शाकिर साहब की मोहब्बत, खुलूस, लिल्लाहियत, फिक्र, सोच, वो मतानत, संजीदगी, गौर व फिक्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, अखलाक में अल्लाह ने आपको ये हौसला दिया कि आप इस जंगल में मंगल के काम फराइज अंजाम दिए। खुदावंद कुदूस। तो एक बात मैं और कह के अपनी बात मुकम्मल करूंगा। हालात तो बहुत तरह के हैं, मैं हालात पर बोल सकता हूँ, लेकिन मसला क्या है कि 1857 के बाद, 1857 के बाद, चूंकि कलकत्ते वालों को ज्यादा मालूम है, बंगाल वालों को, चूंकि हम लोगों की पहली राजधानी भी यही थी, कलकत्ता, भारत की पुरानी राजधानी, पहले दिल्ली, फिर कलकत्ता, फिर दिल्ली। तो मालूम है जब 1857 में बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह, उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया, बर्मा चले गए। तो 1857 के बाद पूरे देश के अंदर ऐसी आफत आई, ऐसी परेशानी आई उलमाए किराम के लिए, मुसलमानों के लिए और सब उन लोगों के लिए, चाहे उसमें हिंदू हो कोई भी हो, उन सब के लिए जो आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे थे, सब पर बेशुमार परेशानियां आई। तो उस वक्त ऐसे हालात में जब मस्जिदें वीरान हो गई, जब मदरसे खाली हो गए और हर तरफ तबाही, बर्बादी, कत्ल क़िताल, फांसी, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां और अंग्रेजों का गलबा, कब्जा, जब ऐसा माहौल कायम हो गया, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 साल के बाद, 1857 के 10 साल के बाद हजरत मौलाना अल्लामा इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए दारुल उलूम देवबंद को कायम कराया। 1857 के 10 साल के बाद 1867 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दारुल उलूम देवबंद कायम कराया। अब इसमें क्या हिकमत थी, इसमें क्या हिकमत है? एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, वो ये फरमा रहे थे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और दोनों जब एक बस्ती की तरफ जा रहे थे, तो एक दीवार गिर रही थी, वो दीवार गिरने वाली थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो दीवार सीधी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने ये दीवार सीधी क्यों करी, इसका मकसद क्या था? तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को वजह ये बताई, वो अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। उन्होंने इसकी वजह ये बताई कि इसके नीचे खजाना छुपा है, इसके नीचे नेमत है, इसके नीचे इन दोनों बच्चों की अमानत है। जब ये बच्चे तुम्हारा रब ये चाहता है, तुम्हारा खुदा ये चाहता है कि जब ये बच्चे बालिग हो जाएंगे, ये छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, उनकी अमानत है, उनका खजाना है, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, तो उस खजाने को निकाल लेंगे, उस दौलत को निकाल लेंगे, अपने इस्तेमाल में लाएंगे, अपने काम में उसको लेकर आएंगे, ताकि वो नेमत उसकी महफूज रहे, वो खजाना महफूज रहे, वो नेमत उसकी ज़ाय ना हो। इसलिए मैंने ये दीवार सीधी कर दी थी। अब यहाँ आइए तो इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मौलाना शौकत अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और इसी तरह आते 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 यहाँ आइए, यहाँ आइए, अब यहाँ आइए, अब यहाँ आइए, और फिर यहाँ आ जाइए, फिर इस इलाके में आ जाइए, फिर इस कॉलोनी के अंदर आ जाइए, हजरत कारी शाकिर साहब तक आ जाइए कि उन अकाबिर ने उलमाए किराम ने मदरसे की चार दीवारी और मदरसे के अंदर इन दरसगाहों में, इन कमरों में, इन मकामात के अंदर दीवार सीधी करके यहाँ वो खजाना महफूज किया है, वो खजाना महफूज किया है, वो नेमत महफूज की है, वो दौलत महफूज की है इसके अंदर, इन चार दीवारी मदरसों के अंदर। कि हमारे अकाबिर की नजर ये थी कि बाहर हालात खराब है, कहीं ये ज़ाय ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, कुरान की रूह, कुरान की हकीकत, कुरान की तालीम, हदीस
तरीके पाक का तरीका कहीं ज़ाया ना हो जाए, वो दीवार सीधी कर दो ताकि इन मदरसों के अंदर वो सब तमाम चीज़ें महफूज हो जाए। और जब ये बच्चे बड़े हो जाए, जब ये बच्चे बालिग हो जाए, जब ये बच्चे फारिग हो जाए, जब ये बच्चे आलिम दीन हो जाए, जब ये बच्चे हाफिज कुरान हो जाए, तो उस खजाने को निकाल कर कौम के बीच पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। ये वो दूरअंदेशी थी, ये वो बसीरत थी, बसारत थी, दूरअंदेशी थी, हक़ानियत थी, सोच थी, तसव्वुर था, अज़्म था, इस्तेहकाम था, इखलास था और इस्तिखलास था कि उन्होंने ऐसा कदम बढ़ाया। यहाँ मदरसों की चार दीवारी के अंदर कुरान को, हदीस को, हिफ्ज़ को, तालीम को, तरीके को, सुन्नत को, फिक्र को, निज़ामत को और हुकूमत के तमाम सिस्टम्स को और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को और कुरान मजीद की तालीम को उन्होंने यहाँ महफूज किया है। तब बच्चे जब बालिग हो जाएं, बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, तो वो उस रूह को निकाल कर, उस खजाने को निकाल कर, उस तालीम को निकाल कर, उस पैगाम को निकाल कर कौम के दरमियान पहुँचे। फिर कौम की इमामत, फिर कौम की निज़ामत, फिर कौम की सियासत, फिर कौम की रहबरी, फिर कौम की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको वो बखूबी अंजाम दे सके। इसलिए इदारा बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का कि आपने मेरी इतनी बात सुनी और इतनी कहने का मौका दिया। पहली बार मुझे आप हज़रात के सामने आने का बेहद मुझे खुशी हो रही है। हाफिज़ मिसबाहुद्दीन साहब को बहुत बहुत खुशी हो रही है कि तुमसे आए हैं, मौलाना यूसुफ साहब को भी, मौलाना गयास साहब को भी और जितनी भी हमारे मेहमान हैं कि आप हज़रात के इस इदारे को बेहद तरक्की अता फरमाए। आप हज़रात की तवज्जो यहाँ रहे, आप हज़रात की मोहब्बत इस मदरसे के साथ शामिल हाल रहे, तमाम फिक्रें, सोच, दुआएं सबकी क़ारी शाकिर साहब के साथ रहे। आप अज़्म के साथ, हौसले के साथ यूँ चलते रहे। बस ये बात कह के यूँ कि न घबरा बादे मुखालिफ से ए उकाब। एक परिंदा उकाब है कि जब वो परिंदा ऊपर उड़ता है तो अगर उधर से हवा चल रही हो और उड़ना उधर ही है तो उसके बारे में शायर ने यूँ कहा कि न घबरा बादे मुखालिफ से ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंची उड़ाने। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्ला बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वसल्ली वसल्लिम वबारिक अला नबिय्यिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा क़ादतित तुक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा इल्तबसत अलैकुम उमूरुकुम फ़अलैकुम बिकिताबिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, दरअसल तकरीर का प्रोग्राम हज़रत क़ारी उसामा साहब का है। ये तो बंदा नवाजी है कि इन्होंने मुझे कुछ रूशनास करने की इनायत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को और इस बस्ती को अपने इनायत रहमत का ज़रिया बनाए। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों, चंद बातें जो इस आयत के तहत और इस हदीस के मातहत में आती हैं मैं आप हज़रात के सामने पेश कर दूँ। अव्वलन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो कुरान करीम ने नाजिल फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जो पहला पैगाम पहुँचा वो यही है, इक़रा, पढ़ो। अब ये जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी थे, किसी के पास ज़ानुए तलम्मुज़ हासिल नहीं किया था और आपने किसी से तालीम जो है वो हासिल नहीं की थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही जवाब